there was a film called Tata actually called Victor Show. And when I was in school, he was very popular. We called Sanjay Dalal, he was a tough man. And he went from the East Coast to the West Coast. And he stopped in between somewhere at the hotel. And that fellow looked at the fellow in charge looked at the and said, "You're an actor. We don't allow actors in this hotel. Get the hell out of it." And he looked at the man and said, "Look, I am no actor and I have 50 film films to prove it." So I, as a writer, have no right to say that I am a writer because I have read his books and I have read her book and they are the real writers. Anupam Saab's book I am reading right now. The first one is, out of print because 4 editions of it, your biography. And her book is called Childhood, which is incredible. I'm reading it now. I'm reading his book on coronavirus, which is incredible. Because what I have noticed about him is that he is inveterate optimist. I mean, if you read the book, it is a motivational book actually, because I read the book and I felt so much brighter. He is absolutely great. And as for her book, it is, takes you back to, I'm here already, unfortunately, I don't know myself very well. But it gives you a very, very beautiful picture of Punjab. And for those who have not read it, I suggest that you must buy the book and read it. That's all I have to say. I want to thank from the bottom of my heart both of them for keep coming here, especially Anupam ji, of whom I am a great fan, because not only as an actor, but as a great writer, because I read his book. And as extracurricular activities, he is incredible. So is Dipti. She is a very beautiful writer, and I've seen her paintings. They are fantastic. She went to an art school. And I keep telling her, why don't we have an exhibition? She must have one. But I hope she agrees with me someday and has one. That's all I have to say. Thank you, everyone. It's a pleasure to be here. I have been looking forward to Parikshit ji's book. There was a friend called Ali Peter John, who had been telling me forever that मैं परीक्षित जी के पीछे पढ़ा हूँ कि आप किताब जरूर लिखो अपने बारे में, अपनी लाइफ की. He'd done a book on Baraji, and so Ali had been telling me कि मैं ये किताब को लिखवा के ही रहूँगा. So I do give credit to our dear departed friend Ali Peter John for having prodded Parikshit ji to finish this book, which I think he has been writing. शुरू तो बहुत साल पहले की होगी, बहुत साल पहले, he's written a few chapters and then he had to complete it. I, for one, I must tell you, I've always identified a writer in Parikshit ji. I've always been telling him, you must write, because father was a writer, and he had it in him all this while. In fact, I've always felt that he should have been writing all these years. Yes, Bhisham ji to hai. तो सभी जानते हैं भीषम जी, but Baraj ji, the way he's written about his experiences, and I've always seen you as a writer. I've always seen that in you. Really, I'm honestly saying, it's not something that ये स्टेज पे आकर के ही बोलना है. नहीं, I've always felt that Parikshit ji has a heart which, he has a feel for things, the way he perceives things. It's special, it's different. You have many people that you come across in the industry, they are colleagues, they become friends, and Parikshit ji has stayed more than a friend over the years for me. So I've learned also so much from him,
And I'm very happy that I'm part of this afternoon, this morning, with this book in my hand, finally. So thank you, Parikshit ji, for this. Parikshit is, we don't meet very often, whether it's Deepthi, but I always believe that there are certain relationships which are like a pause button on a tape recorder. Where you leave, you start the way, it starts from there, where you left. So, you have been a great optimist. That is the greatest quality that I see in you. We have met in the past, and every time you met me with so much of enthusiasm, so much of joy, and so much of happiness. And it's not only with me. No, you are like that. No, I've seen you with everybody in a meeting. All those people, Malika and everybody would come here. I think you come for their love for you. Because frankly speaking, I've yet to read the book, but I will be reading it. But you, and on top of it, you're from Shimla. And Balraji had a very beautiful bungalow on Baluganj. And we used to cross that place and we used to say that Balraj Sani Sahab yahan rehte hain at that time. And we had, it was like a sense of wonder because we'd grown up watching his films. And I like the title of your book, Strange Encounters, because I think all of us have had some strange encounters. Thank you for introducing us with so much of love and so much of authenticity. You're right, these days books are, you don't really see that atmosphere of a bookshop. From a small town, I can tell you that bookshops were the most amazing dream place for us. We had a bookshop called Partition Company. वो पुरानी किताबें रखते थे. I was introduced to my first book by my छोटे चाचा. उन दिनों वो Russian literature translate होता था Soviet Union का. तो मदर करके तो मैक्सिम गोर्की का नॉवल था माँ. वो मेरी पहली किताब थी. And then one got so intoxicated by the magic of books that it really remained with me. At a time I had more than, I think, 14,000 books. And then unfortunately, the 2005, the floods came in Mumbai and all my books got submerged in my office. But thank you for inviting us. Thank you for this wonderful afternoon. We don't have these kind of afternoons where people are just sitting here and chatting. And it's an afternoon about books, authors, memories, strange encounters. वरना शाम को जो पार्टी होती है, या शाम को जो इवनिंग होती है, उसमें पता नहीं क्यों लोग जल्दी में होते हैं, सुन कम रहे होते हैं, बोल ज़्यादा रहे होते हैं, और वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, दूसरे से बात नहीं करते. They're talking at people rather than talking to people. So let me start with my strange encounter, and then we'll ask Deepthi and you. When I came to Mumbai on the 3rd of June 1981, actually, I had come with a gold medal from drama school, but I was bald and thin. This is a very dignified, sexy bald look. But when you are balding at some stage, after hair have gone from here, after hair from here, so that's not a very great look. And in Mumbai at that time, to be an actor without hair was impossible task. I did not know that. यहाँ कहते थे आपका हेयर स्टाइल है कि नहीं है, बाल है कि नहीं, तो आप एक्टर बन सकते हो. बिना बाल के आप एक्टर कैसे बन सकते हो? अरे मैंने कहा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मुझे सब कुछ पता है. नहीं, बाल नहीं है, आप असिस्टेंट बन जाइए, राइटर बन जाइए. तो जितने थोड़े बहुत मैंने पैसे इकट्ठे किए थे वो तो 3 महीने में खत्म हो गए. And I used to live in Bandra East. My landlady was a Dhoban. हाँ, तो हम 4 स्टूडेंट्स एक कमरे में. मिस्टर सेठी इज हियर एंड हिज लवली वाइफ. सो सच अमेजिंग मेमोरीज ऑफ एवरीबॉडी. तो धोबन जो थी वो किचन में सोती थी अपने 4 बच्चों के साथ, और मैं 4 स्टूडेंट्स मतलब जो थे, हम 4 स्ट्रगलिंग एक्टर्स, वो दूसरे कमरे में सोते थे. तो पहले दिन मैंने उससे पूछा, उसके बड़े बेटे से, कि भाई मेरा एड्रेस क्या है. तो उसने कहा कि मैं लिख के देता हूँ. मैंने कहा मेरे फादर को बोलना पड़ेगा कि इस एड्रेस पे चिट्ठी लिखो. तो जब उसने एड्रेस ला के दिखा, मैं ज़ोर से हंसा. और वो एड्रेस मेरा क्या था? पहला, अनुपम खेर, 2/15, खेरवाड़ी, खेर नगर, खेर रोड, बैंड्रा ईस्ट.
मैंने कहा मुझे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है. But Mumbai is a city which gives chance to everybody, but also it's a city if you're not somebody, people are not really looking at you. Means you are, it has a place for everybody. तो दिन नहीं कटता था, दिन कटता ही नहीं था. सुबह हो जाती थी, आप रोज आजकल की तरह थोड़ा है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जा सकते हैं, देयर इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ फाइंडिंग वर्क. उन दिनों दरवाजे खटखटाने होते थे. देवानंद साहब के पास गया था मैं, तो उन्होंने पहले पढ़ाए नानू कहाँ 2/15 खेर बाड़ी खेर नगर खेर रोड है तुम्हारा एड्रेस. बट ही वाज वेरी एंथुसियास्टिक एंड ही वाज वेरी वेरी लविंग. राही मासूम साहब रजा वगैरह, फिर वो भी खत्म हो गया. तो मैं क्या करता था, जस्ट टू किल टाइम, मैं बैंड्रा ईस्ट से लोकल ट्रेन लेता था और मैं ऑल द वे चर्नी रोड तक जाता था और फिर वापस आता था. तो मैं दिन में 3-4 बार करता था ऐसा, तो टाइम कट जाता था. और ऑल्सो मैं लोगों को देखता था, तो मुझे लगता था कि लोगों को देख के एक आगे जाके मेरे को हेल्प होगी एक्टिंग में. तो एक पर्टिकुलर सीट होती थी जो खिड़की के पास होती थी और मैं खिड़की से बाहर देखता था. एंड ट्रेन में ट्रेजेडी जरा ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाती है, प्लेन में ऐसा नहीं लगता है. तो मैं ऐसे सोचता था कि किसी दिन तो मेरा कुछ ना कुछ होगा. एक दिन जब मैं बैठा तो मेरे साथ वाली सीट पर, जिस सीट पर मैं बैठता था वहाँ पर एक श्रीमान जी बैठे थे विद डार्क ग्लासेस एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड विद अ स्टिक इन हिज हैंड. सो आई सेड ओके नाउ आई विल सिट नेक्स्ट टू हिम. सो एज द ट्रेन मूव्ड, he was looking outside and told me, young man, you are restless. You are restless. So मैंने कहा हाँ जी. Why are you restless? हिंदी बोला, क्यों आप restless क्यों? मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, बड़ी बेइज्जती होती है, मैं चक्कर काटता हूँ. अच्छा तो कलरफुल कपड़े पहना करो. तो मैंने वाइट शर्ट पहनी हुई. तो मैंने कहा कि उससे नहीं नहीं पहनो, कलरफुल शर्ट पहनो. ओके सर. आफ्टर सम टाइम ऑन इन एल्फिंस्टन रोड वो गाड़ी रुकी, ट्रेन उठा एंड ही वॉकड आउट एंड आई डिस्कवर्ड ही वाज अ ब्लाइंड मैन. सो फॉर अ ब्लाइंड मैन टू टेल मी दैट यू शुड वेयर अ कलरफुल क्लोथ्स, इट वाज सो अनबिलीवेबल. I sat in that train at the same time so many months to find that who that person was. I couldn't find out. So this is the strangest encounter. Whenever I feel a little low and I think things are not working in my favor, I wear colorful clothes. आजकल मेरे दिन अच्छे चल रहे हैं तो मैंने ये किया. बुक जो किताब मैंने लिखी थी, काफ़ी सालों लिख रहा था. फिर मैंने अपने पब्लिशर्स को दिखाए इसके वे सारे चैप्टर्स. तो उन्होंने कहा कि इसको पब्लिश किया जाए किताब के तरह. उनका बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे किया. और किताब साइमन एंड सिस्टर वालों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ बहुत अनुपम जी का कि यहाँ आए और दीप्ति जी का, दोनों आए इस मौके पर. मेरे लिए बहुत ही बड़ा दिन है और बहुत ही खुशगवार दिन है, क्योंकि मैं इन दोनों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. To be very frank, I admire him and I admire Deepti. They are great writers in their own right. और इनकी किताबें पढ़ी हैं दोनों की मैंने, और इनकी अभी पढ़ रहा हूँ कोरोना वायरस के ऊपर. और अगर कसम से कह सकता हूँ कि अगर न पढ़ी होती तो आज तक मेरे दिल में डर बैठा रहता कोरोना का. इनकी वजह से वो दूर हो गया, बिकॉज ही इज एन ऑप्टिमिस्ट एंड ही राइट्स सो ब्यूटिफुली. हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें बुलाया गया, मतलब दीप्ति के बिहाफ पे भी मैं कह सकता हूँ. किताबों का जो अपना नशा है और जो अपना एक खुमार है और एक अपनी जो रिचनेस है, वो आपको कंप्यूटर में बैठी हुई किसी किताब पर या उस पर नहीं मिल सकती. बिकॉज जब तक आप किताब को हाथ में नहीं लेते हैं और जब तक पन्ने नहीं पलटते हैं और जब तक ऐसे भी नहीं करते हैं, तब तक उसका एक अपना मैजिक होता है. मेरी लाइफ में किताबों ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल किया है. बतौर एक्टर किताबें जो हैं आपकी इमेजिनेशन बढ़ाती हैं. किताब में लिखा होता है एक आदमी रात के अंधेरे में घूम रहा था, तो आपका आदमी अलग होगा, आपकी रात अलग होगी, घूमना अलग होगा. तो ये स्ट्रेंज एनकाउंटर्स की वजह से आज इनसे हमारी मुलाकात हुई और मैं प्रार्थना करूँगा कि ये किताब बहुत ही सफल हो और सब लोग आप लोग इसे पढ़ें.
सर आप दोनों की लाइफ में ऐसे कोई स्ट्रेंज एनकाउंटर्स हुए हैं जो अगर कुछ शेयर करना चाहें हमारे audience? बहुत सारे ऐसे एनकाउंटर हुए, अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, लंबे एनकाउंटर्स हैं, आप ज़्यादा दिखाएंगे नहीं पूरा बट अच्छे एनकाउंटर्स भी होते हैं एंड आई लाइक द टाइटल ऑफ द बुक स्ट्रेंज एनकाउंटर्स। देयर एनी एनकाउंटर इज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस। सर सिंस इट्स अ लॉन्च ऑफ अ बुक तो गुड स्टोरीज के बारे में मेंशन किया कि हमारे इंडस्ट्री में जो है वैल्यू नहीं किया जाता है। जी। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात करें तो स्टार्स को वैल्यू करते हैं और साउथ में गुड स्टोरीज को वैल्यू करते हैं। आई थिंक अभी आज ये मौका नहीं है उन बातों के लिए, बिकॉज आज तो हम सिर्फ इस किताब के लिए आए हैं। आई थिंक इम्पोर्टेंट टू लर्न टू सी हर चीज़ के लिए अच्छी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ सीखने के लिए। जितनी आप कुछ बोलेंगे। हाँ, बस मैं परीक्षित जी को आई वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर दिस बुक। मैं भी बहुत अरसे से इस किताब की इंतज़ार में थी, बिकॉज़ मैंने हमेशा समझा और मुझे विश्वास था कि परीक्षित जी के अंदर एक बहुत सेंसिटिव राइटर है और वो निकल के आना चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस बुक एंड आई एम होपिंग कि हमें बहुत सी और किताबें इनसे मिलेंगी। परीक्षित जी, आई थिंक दिस इज़ अ गुड बिगिनिंग। दूसरी किताब ऑलमोस्ट रेडी है जी और मैं जिससे कह सकता हूँ कि आई नेवर डिड वांट टू बी एन एक्टर। मैं हमेशा चाहता था लिखना यस और स्क्रिप्ट लिखता था एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन इन फिल्म डायरेक्शन। ये तो गलती से एक्टर बन गया मैं, और रियल एक्टर तो ये सामने बैठे हुए दोनों। मगर दूसरी किताब तैयार है और उसके 2 चैप्टर्स लिखने हैं। रियली हाँ, That is so 2 exciting. चैप्टर्स लिखने में अभी बता रहा था इनको, और तीसरी मार्क करके रखी हुई है जो कि शुरू कर रहे हैं। वाह, अब इनकी लिखी हुई किताबों की बाढ़ आने वाली है। दैट्स अमेजिंग। Because if I don't write, I feel absolutely dead. I don't feel alive. थैंक यू। सुबह 3-4 घंटे लिखना बहुत जरूरी है। ज़रूरी है। सर वन यू आर आल्सो कमिंग विद अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, इमरजेंसी में आ रहे हैं, उसका स्टोरी भी काफ़ी जानदार है, उसके बताइए क्या कहना चाहिए। सब फिल्में इंटरेस्टिंग आ रही हैं, सब अच्छा है। वी आर गोइंग थ्रू अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज़ जहाँ रियल टैलेंट, रियल कहानी दुनिया तक पहुँचेगी। एक चर्निंग होती है। ये बार बार मेरी पैंडेमिक की किताब की बात कर रहे हैं, वो किताब का नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। बेसिकली समटाइम्स व्हेन यू एनकाउंटर योर फियर्स एंड यू राइट अबाउट देम, तो धीरे उसका डर जो है वो कम हो जाता है। तो आई थिंक पिछले 2 सालों में जो हुआ है सब में कोई ना कोई बदलाव आया है। अब कहानियाँ भी अच्छी आएंगी और किताबें भी अच्छी आएंगी। धन्यवाद। आपने कहा कि सिनेमा का बहुत अच्छा फेस चल रहा है, साथ ही जो एक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो है ऑडियंस को जो मैसेज जा रहा है उस बारे आज में तो क्या मैं कहना सिर्फ इसी किताब के बारे में बात करूँगा और कोई बात नहीं। धन्यवाद। सवाल ये है कि आप तीनों एज एन एक्टर्स हैं और आप तीनों ने ही बेहतरीन बुक्स लिखी है, तो ये कहीं ना कहीं एक अंदर से था कि आपको अपनी लाइफ के ऊपर बुक्स लिखनी है या एक्टिंग के बाद ये आपका सेकंड बेस्ट है? मैंने 17 साल पहले अपनी लाइफ के ऊपर एक नाटक किया है, कुछ भी हो सकता है। 17 साल वो पहले देखा मैंने। 2005 में It was fantastic. 1 पर्सन Yes. शो। It was a one-man show. उसमें क्या अपनी जो जितनी सीख आपको अपनी लाइफ से मिल सकती है वो अगर आप सीखने वाले हों, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखो तो ज़्यादा जल्दी सीखता है इंसान, पर उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। तो मैंने अपनी गलतियों से और अपने फेलियर से बहुत कुछ सीखा है और मुझे लगता है फेलियर जो है वो सक्सेस से ज़्यादा कुछ सिखाता है। मैम आप प्लीज़ कहिए आपकी बुक्स आई काफ़ी बस मैं स्कूल में थी जब मैं लिखा करती थी, तब पोइट्री वगैरह लिखते थे, एसेज लिखते थे, बट पोइट्री आई हैड अ वीकनेस फॉर। और मुझे हमेशा से लगता था कि मैं लिखूँगी। आई विल बी अ राइटर एज वेल एज अलॉन्ग विद माई एक्टिंग करियर। मैं हमेशा लिखूँगी और मैं हमेशा लिखती आ रही हूँ। अब वो काम जो है अब कुछ सालों से सामने आने लगा है। मेरी पहली किताब 81 में आई थी, 1981 जब मैंने फिल्म्स ज्वाइन की ही थी। वो पोइट्री कलेक्शन थी, फिर थोड़ा लंबा अरसा होता रहा। I couldn't write as much as I would have liked to, but I'm loving my life as a writer now, and I can understand what Parikshit ji is saying. 3-4 घंटे अगर लिखा ना जाए दिन में तो दिन अधूरा लगता है। लास्टली सर बलराज साहनी सर, उनके बारे में जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि एक बहुत बड़े एक्टर्स रहे हैं और आजकल के एक्टर्स को कितना कुछ सीख सकते हैं बलराज सर से। मैं जानना चाहूँगा। बलराज साहनी साहब, अगर एक फहरिस्त बनाई जाए कि हिंदुस्तान के इतिहास में और आगे भी आने वाले अगर 10 एक्टर्स की फहरिस्त बनाएं तो उसमें ऊपर चोटी पर उनका नाम होगा। हमें
एज ए स्टूडेंट ऑफ एक्टिंग, एज ए स्टूडेंट ऑफ ड्रामा, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, उनकी फिल्मों से, इवन उनके व्यक्तित्व से। अभी जो परीक्षित जी ने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया एज ए फादर, उससे लगता है कि देखिए, मैंने इनसे पूछा था कि उनको गुस्सा आता था, तो उन्होंने बोला कि नहीं आता था। उनके व्यक्तित्व से भी हमें बहुत कुछ मिलता है। उनको देख के लगता था कि ये इस तरह के इंसान होंगे। और टुडेज जनरेशन कैन लर्न लॉट। उनकी किताबों का, उनके फिल्मों का रेट्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उनको दिखाया जाना चाहिए। हम अपने स्कूल में उनकी फिल्में एक दो दिखाते हैं जिसमें वो रियलिस्टिक एक्टिंग, उस ज़माने में रियलिस्टिक एक्टिंग करना, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। ऑल क्रेडिट टू हार्ड वर्क। ये सब के बारे में बलराज जी के बारे में मैं कह चुकी हूँ। मेरी जो 2011 में जो किताब थी शॉर्ट स्टोरीज़ की, उसमें एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम ही है बलराज सानी। तो मैं जब 11 साल की थी तो मैं बलराज जी से मिली थी। वो अमृतसर में आए थे एक प्ले करने जिसका नाम था कनक दी बल्ली। तो मेरे फादर मुझे गांधी ग्राउंड में लेके गए थे वो प्ले देखने, एंड हाउ आई मैनेज टू गेट एन ऑटोग्राफ फ्रॉम बलराज जी। और मैं किस तरह से एकदम बौखलाई हुई थी। ही वॉज माई काबुली वाला, you know, I was, it was like that for me, the equation was like Mini and Kabuli वाला। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा एक रहा ऐसा इन्फ्लुएंस। और मैंने सोचा कि जब मैं एक्ट्रेस बनूंगी बड़ी होकर, तो मैं ऐसी ग्रेसफुल, इतनी डेप्थ और इस तरह की पर्सोना मैं भी रखूँगी अपने अंदर, जैसे बलराज जी का है, जैसे मैंने उनको पहली बार देखा और महसूस किया। थैंक यू दोस्तों। Thank you.